السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. میرے پیارے پیارے بچوں کو پیار بھرا سلام. اللہ تم سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، شاد و آباد رکھے، اور تمہارے سروں پہ تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سایہ قائم رکھے. اللہ جو دیا اس پر شکر، اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق دے. بچوں، اولاد کے لیے دعا کریں گے. ذوالحجہ کے 7، 8، 9 اور 10 کو خاص دعا مانگنی چاہیے. جن دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی. اولاد کی زندگی، صحت، مال اور عزت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اولاد کے نصیب کے لیے اور اچھی جوڑی کے لیے دعا کرنی چاہیے. ماں باپ دعا کریں، ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. یا اللہ، تیرے سمت کے نام سے، تیری عظمت والے نام کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ رب کریم ہمارے اولاد کے احوال کو درست فرما، ہم پر احسان فرما، ان کی عمر میں صحت و عافیت اور اپنی اطاعت اور رضا کے ساتھ برکت پیدا فرما. ان کے مرض کو قوت اور شفا کاملہ عطا فرما. ان کے بدن، کان، آنکھ، جان و اعضاء میں عافیت پیدا کرنا. یا اللہ، اپنی رحمت سے ان کی ہر بلا، گناہ، گمراہی اور غلطیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ، ان کو اپنا فرمان بردار بنا. اے اللہ، ان کی تربیت کرنے میں، ان کی نیکی میں، ان کی محبت بنانے میں ہماری مدد فرما. ان کو ہمارے لیے خیر بنا دے. ہم اپنی اولاد کو تیری ضمانت اور تیری امانت میں دیتے ہیں. اے اللہ، وہ عظیم ذات کے جو امانت کو ضائع نہیں کرتا. ہم پر ہر آفت اور بڑی بیماری اور رات و دن کے شر اور ہر حسد کی آنکھ کے چلتے ہم تمام بچوں کی حفاظت فرما. ان کی حفاظت فرما. سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر نیچے سے حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. ہمارے اولاد کے دل میں اپنی محبت ڈال دی اور اسے اپنا اور اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما بردار بنا دیجیے. ان کی آنکھ کو نام اور ان کے دیکھنے سے، ان کے دل کو نام اور ان کی محبت میں مبتلا ہونے سے بچا لے. آمین یا رب العالمین. یا اللہ، ہماری اولاد کو دین، علم اور اخلاق اور لوگوں کی محبت میں سے حصہ بناتا فرما. اے خالق کائنات، ان کی توانائیوں کو، صلاحیتوں کو، اوقات، مال اور رزق میں آپ کے دین کا حصہ ہو. دین کے دشمنوں کا کوئی حصہ نہ ہو. یا اللہ، ہماری اولاد کو 2 جہاں میں کامیابی اور بلند مقام عطا فرما. آمین. اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، کوتاہی مت کریں اس حال میں کہ آپ پر یہ برکت والے ایام گزر جائیں. یا اللہ، بے شک ہم تمام آپ کی حاجت مند ہیں، ہماری مدد فرما یا رب العالمین. خاتم النبی رحمت العالمین. تو یہ رب ذوالجلال والاکرام ہمارے خطاؤں کو بخش، توبہ قبول فرما، علم نافع، صحت کاملہ، اولاد صالحہ، رزق حلال، مقام ابدیت عطا فرما. ہم پر رحم کر، کرم کر، ہم کو شیطان اور حاسدوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ. اپنے ماں باپ کی صدقے جاریہ بنا دے. اے پروردگار، ہم کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جس میں تو نے ہدایت فرمایا ہے. ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. جو توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں، ان پر تو اپنا خاص رحم آتا ہے. آمین. مجھے ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہیں، اور مجھے تجھ سے قریب کر دے، جو مجھے تیری یاد دلاتے رہے اور تیرے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے اس سفر کو کامیابی دے. جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ وقت آنے پر تمہیں ضرور. اے اللہ، ہمیں صبح اور شام اپنی رحمتوں، نعمتوں اور خوشیوں کی بارش ہم تمام پر برسا دے. یا اللہ، ہمارے نیند میں راحت، بیداری میں عافیت، معلومات میں برکت اور دعاؤں میں قبولیت عطا فرما. اور آپ تمام کو اطمینان قلب کے ساتھ دین دنیا کی دولت نصیب فرما. کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی اکیلا مت چھوڑنا. میرے مالک ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا. ہم آپ کو پسند آ جائیں ایسے ہمیں برتنا. انشاءاللہ میں نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما. یا اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. دلوں کا چین اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ پاک آپ تمام کو زمین و آسمان کی تمام آفات سے محفوظ فرما، اور ہمیں اور ہمارے اولاد کو صالحین اور
साबिरीन बंदों में शुमार फरमा और हमारे औलाद को हमारे नक्शे कदम पर चलने की तौफीक फरमा। हमें अल्लाह ने, तेरा शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी मर्जी को इतनी अहमियत दी। अगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ होता, और अदा शुक्र अदा करो कि अल्लाह तुम्हारी मर्जी की तरफ, जो तुम्हारी मर्जी है वही कर रहा है, हमारी मर्जी से बेहतर और बहुत अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह। जबान शीरी उलूक गिरी, पहले सोचो फिर बोलो। कितने खसारे हैं इस जबान के, कितनों को जख्मी किया इस जबान में, कितने ही नेक अमल पर पानी फेरा इस जबान में, कितनों को इबादत के बावजूद जहन्नम में ले जाएगी ये जबान, कितनों के अमाल को वजन कर देगी ये जबान। अल्लाह हमारे जबान की सख्तियों को दूर करे, जबान के गुनाहों से बचा ले, हमारी जबान सिर्फ खैर पर खुले, हमारी जबान से लोग सलामत रहे। आमीन। बच्चों, मरने से पहले हमें अमाल बनाना चाहिए, मौत की तैयारी करना चाहिए। अगर ये जिंदगी जाया हो गई तो इस दुनिया में आने का दूसरा चांस नहीं मिलेगा। इसलिए लौट आए रब की तरफ, तौबा व इस्तगफार करें, अल्लाह से माफी मांगे। अभी भी वक्त है, गया वक्त वापस आता नहीं, तो इंशाल्लाह इसको गनीमत जाने और वक्त की कदर करें। अल्लाह हमें सुनने समझने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, हमें बड़ों की ताबेदारी और बच्चों से शफकत के साथ पेश आने की तौफीक दे। या अल्लाह हमारे वालिदैन की सवाब जारिया बना दे। बच्चों, हम हमारे गुनाहों की माफी अपने जिंदगी में मांग लेंगे, अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगेंगे, वो गफूर रहीम है, जरूर हमारी दुआओं को कबूल करेगा। या अल्लाह हमें हसद जलन और वक्त से महफूज फरमा, खर्च के बोझ से हल्का कर दे, कारोबार में तरक्की दे, हलाल रोजी अता फरमा, और तमाम मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमाए। अल्लाह जो मांगा वो भी अता कर, जो मांगने से रह गए वो भी अता कर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे दुआओं को अल्लाह जरूर कबूल करेगा। बकरीद के जो लास्ट जिले 4 दिन उनको जाया मत करना, उसको सही सही तरीके से उसका मुसर्रिफ करना। अल्लाह हमें सुनने समझने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम और वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ पर दीन की निस्बत, कुरान की निस्बत लाके जमा किया। जब अल्लाह ताला किसी को चाहता है, किसी को साथ बेहतराई का इरादा करता है, उसको क्या करता है बहनों? दीन की समझ देता है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है बहनों कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ पर जमा किया, कुरान की समझ दिया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है। अल्लाह ताला बस हमारी ऐसी मदद करते रहना। अल्लाह ताला तो हमारे से जो हमारे अमाल है उसको कबूल करना, हम तौहीद पर आ जाए, हमारे अकीदा दुरुस्त हो जाए, और जितने भी शिर्क कामें हैं, शिर्क और बिद्दत है, वो हमारे जिंदगी से मिट जाए। आमीन आमीन आमीन। ओके, तो बहनों यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है, पहले की आयतें अगर मैं लेकर चलूं, जहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है वो वही है जो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है ना। जैसे कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने जिंदे से मुर्दा निकाला, मुर्दे से जिंदा निकाला, है ना। तो बहनों हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह, जैसे कि तू जिंदे से मुर्दे को निकालता है, मुर्दे को जिंदे को निकालता है, तो या अल्लाह जो हमारे दिल मुर्दा हो गए हैं, या अल्लाह उनको तू क्या कर, जिंदा कर दे, है ना बहनों। हमारे दिल कैसे हो गए, मुर्दा हो गए, हम लोग मौत को याद ही नहीं करते, मौत के बारे में याद करके नहीं रोते हैं, है ना। तो अल्लाह ताला हमारे दिल जो है वो मुर्दा हो गए, इतना हंसते इतना हंसते इतना हंसते हैं, हद से ज्यादा हंसते हैं, और हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। हमको तो कैसा रहना चाहिए बहनों? मौत को याद करना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए, है ना। तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमारे मुर्दे दिल को क्या कर दे, जिंदा कर दे। और अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं मुर्दे से जिंदे को निकालता भी हूँ ना, तो उससे ही वैसे ही बहनों अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह कल तो मैं मर के चले जाऊंगी, है ना, मैं भी मुर्दा होने वाली हूँ। या अल्लाह तू मेरे आमाल को जिंदा रखना, मैं रहूं नहीं रहूं, मेरे आमाल जिंदा रहे, मेरा जो नामे आमाल है वो खुला रहे, और उससे मुझे क्या मिले, बहुत ज्यादा नेकियां मिलते रहा करे, सदके जारिया, है ना। हम रहे ना रहे, हमारे नामे आमाल खुले रहे, और हमको जो है वो सवाब पहुंचते रहे। अल्लाह ताला तू ऐसे गैब के सूरते शक्लें बना दे। अल्लाह के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला कहेगा कुन फयकुन, हो जाएगा, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला से हम क्या करेंगे बहनों, दिल से इस बारे में दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।
अभी देखो ना, हाल ही में सबने देखा होगा कि टाइटैनिक देखने के लिए एक शिप, एक सबमरीन छोटी सी गई थी, है ना। उसमें 5 मिलियनर बिलियनर थे, उसमें एक मुसलमान माँ बाप बेटे भी थे। वो बेटे को जाने का ही नहीं था बहनों, वो बेटे को जाने का ही नहीं था। 19 साल का वो सिर्फ बेटा था, उसको जाने का दिल ही नहीं था, वो डर रहा था। मगर उसका जो बाप था, वो बिलियनर मिलियनर जो भी था, उसने कहा अपने बेटे को कि ये बहुत अच्छा टूरिज्म चीजें है, घूमने फिरने का चीज है, देखने की चीज है, चलो हम लोग जाके देखते हैं। और वो फादर्स डे देखो, क्या बोलेंगे कि जो ट्रेडिशन हमारा है ही नहीं, फादर्स डे के हिसाब से अपने बच्चे को वो लेके गया। अब देखो, जब मौत आनी होती है तो वो बोलते ना कितने गहराई बहनों, बोलते ना कि जो बुर्ज खलीफा जो इतनी लंबी बिल्डिंग है बहनों, वैसे कितने बिल्डिंग अगर तुम नीचे जमीन में डालो, यानी कि 4 या 5 बिल्डिंग जो डालेंगे, यस वो पाकिस्तान से थे, अगर तुम इतना गहराई के अंदर जाके वो टाइटैनिक शिप को देखना, ओके। वो भी क्या, वो जो शिप, अल्लाह अल्लाह हिफाजत करे, वो अल्लाह का अजाब था कि क्या था हमको नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में आता है कि बहनों की जहाँ पे अल्लाह का अजाब होता है, वहां पे क्या बताते हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वहां पे जाओ ही मत जहाँ पे अल्लाह का अजाब होता है। या तो फिर वहां पे अगर जाते भी है तो रोना चाहिए, अल्लाह के अजाब को याद करना चाहिए, जल्दी से वहां से चला जाना चाहिए, वो कोई टूरिज्म स्पॉट नहीं होता है ना। मगर यहाँ पे देखो बहनों, अल्लाह ताला ने जो है हमको ये सब बता रहा है, ये सब निशानियां है ना अल्लाह की, कि देखो वो बाप बेटे और वो जितने भी और थे, 5 लोग थे, है ना, पूरे मिला के बिलियनर मिलियनर बहनों। पर वो पैसे क्या उनको फायदा पहुंचा सके? हाँ, क्या वो पैसों से वो अपनी जिंदगी जो है, एक सांस भी नहीं ले सकते थे बहनों वो लोग, है ना। यानी कि इतना नीचे गए, और एक एक टिकट बहनों 2.5 लाख की, कितने बिलियन डॉलर की टिकट्स थी वो, है ना। और देखो, जब मौत किसी की वहां लिखी होती है तो वो मौत उसको वहां तक खींच के लेके जाती है। और कितना पैसा खर्च हुआ उन लोग को ढूंढने में, करने में। मतलब बोलने का मकसद ये है बहनों, कि देखो अल्लाह ताला जो है ये सब निशानियां हमको दिखाता है, हमको हमारी आंखें खोलना है बहनों, ये सब जानना है, पहचानना है कि देखो अल्लाह ताला जो है वो हर चीज करने पे कादिर है, कोई उसको रोक नहीं सका, कोई उनको बचा नहीं सका। सेकंड में बहनों वो अंदर से ही ब्लास्ट हो गया, प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका वो ओशियन गेट समरीन जो था, है ना। तो अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। अल्लाह हम सबको ये जो निशानियां दिखाता है बहनों, हमारे आंखें खोलने के लिए, अल्लाह ताला हमारी आंखों को खोले, है ना। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, हमारे बच्चों की हिफाजत करे। और ये सब हमारे लिए क्या है बहनों, बहुत बड़ी बड़ी अलामतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह ताला हर एक की हिफाजत करे। और एक रेफ्यूजी की बोट का जो हुआ बहनों, उसमें तो डबल लोग थे, है ना, कितने लोग वो रेफ्यूजीज, वो बोट जो है वो डूब गई, है ना। अब मैं वही सोच रही हूँ, यस बहुत कीमती टिकट थी वो। मैं वही सोच रही हूँ कि देखो ना, पैसे खरीद के वो मौत वहां लिखी थी, और वो इतने पैसे उन लोग के बैंक्स में होंगे, पर वो पैसे उनके कुछ भी काम नहीं आए। और एक बोट और एक सिंक हुई जहाँ पे रिफ्यूजीज थे, उनको बचाने वाला भी कोई नहीं, है ना। कैसा मंजर ना बहनों, एक बोट के पीछे इतने पैसे डाल रहे हैं बचाने, देखने के लिए कि क्या हुआ, किधर हुआ, कुछ रहेगा कि नहीं। और एक बोट जो डूब रही है, जितने लोग डूब रहे हैं, बच्चे कितने सारे, कितनी औरतें, कितने रिफ्यूजीज, और किसी को उसका उसकी पड़ी ही नहीं है ना। तो कैसा दौर चल रहा है, कैसा मंजर चल रहा है, ये सब हम जाने बहनों, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। हम ये सब जो है ना, बाखबर रहना चाहिए हमको, हमारे उम्मत की फिक्र करना चाहिए, उम्मत के लिए दुआ करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे। आ जाते हैं हमारे आयतों के ऊपर, जहाँ पे जो मेन थीम है बहनों, शिर्क के ऊपर, है ना। अब आयत नंबर 105 पर आ जाते हैं, ओके। जो बहनें न्यू हैं वो प्लीज अपने स्क्रीन पर देखें, ओके। मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अल्लाह तबारक ताला जो है, इतने सारे जो है, अल्लाह ताला जो है अपने बारे में अपने कुदरत की निशानियां बता रहा था कि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई बीवी नहीं है, उसको कोई आंख नहीं देख सकती, है ना। वो सबको देख सकता है, वो सबको इहाता कर सकता है। और उसी तरह अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि उनके पास आ गए हैं बसीरत, उनके पास आ गए हैं खुली हुई दलाइल, है
ना, उनके रब की तरफ से। और कोई भी अगर उन कुदरत की निशानियों को, उन दलीलों को देखता है वो उसके लिए ही भला है, और जो कोई उससे अंधा हो जाता है वो क्या कर रहा है, उसका ही नुकसान कर रहा है ना। तो जो अल्लाह की कुदरत की निशानियां, मैं इसलिए ये सब बारे में आपको बता रही हूँ कि ये सब निशानियों पे गौर व फिक्र करना है बहनों, ये सबसे हमको क्या करना है, सबक सीखना है ना। और खासकर कुरान से और हदीस से, है ना। और जो कोई अंधा रहे तो वो उसी का क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उस पर क्या नहीं है, हाफिज नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, निगरान नहीं है। तो ये पहले की आयतें ये चल रही थी, आज की आयत क्या है उस पर आ जाते हैं। और इसी तरह हम जो है वो खोल खोल कर बयान करते हैं आयतों को। कौन, अल्लाह तबारक ताला, है ना। अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला क्या करते हैं, इसी तरह खोल खोल कर बयान करते हैं आयतों को, ओके, साइंस को। क्यों करते हैं ये सब जो है, जो भी निशानियां हैं, जो भी आयतें हैं, अल्लाह ताला उसको क्यों वाजे करते हैं, क्यों उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हाँ, उसका रीजन क्या है वो बता रहे, ओके। और ताकि वो कहेंगे, कौन, वो काफिर कहेंगे कि तुम तो क्या हो, पढ़े हो, यानी कि तुमको सब आता है, तुम यू हैव बीन लर्नड। यानी कि अल्लाह ताला जो है वो बता रहे हैं कि देखो ये मुशरिक के लोगों को, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अनलेटर्ड थे, उम्मी थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, राइट। अब जब कुरान वो लाके बता रहे, समझा रहे, बोल रहे, तो उनको क्या करना चाहिए था, कौम को क्या करना चाहिए था बहनों, कि उनकी बात सुनना चाहिए था, है ना। मगर कौम क्या कर रही है, उल्टा उनको जो है वो गलत गलत बातें बोल रही है। क्या बोल रही है कि तुमने ही नाउजुबिल्ला इस कुरान को क्या किया है, घड़ लिया है, तुमने ही इस कुरान को बनाया है, लिखा है। कैसे, तो बोलते थे क्या कि ये कोई तो एक रोमी है, ओके, कोई तो एक गुलाम है, तुम उसके पास जाते हो, जो रोमन का था, ओके, जो वो था रोमी था, ओके, और उसके पास तुम जाके क्या करते हो, उसके पास तुम जाके सीखते हो। दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू टेल, ओके। तो यहाँ पे आगे आएगी आयतें कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम लोग कितने बड़े, तुम लोग को अक्ल नहीं है क्या। अगर वो रूमी है, अगर वो रोमन है, तो उसकी लैंग्वेज अलग है और ये कुरान की लैंग्वेज अरबिक है। अगर ऐसा होता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी और के पास जाके सीख रहे हैं, तो हाउ कैन ही से इन अरबिक, समझ में आ रहा है। तो इतना भी तुम्हारा जहन नहीं है, इतना दिमाग नहीं है ना। तो अल्लाह ताला यहाँ पर यही समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कि अल्लाह ताला जो है ये आयतों को साफ साफ वाजे कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये काफिर जो है ये ऐसा कहे कि हमारे नबी ने क्या करे है, ही ओनली हैज लर्न, यानी कि तुम तो खुद क्या हो, पढ़े, तुम खुद ही क्या कर रहे हो, पढ़े हो, यानी तुम तो पढ़े हो, यानी कि यू हैव लर्नड, यू हैव स्टडीड, ओके। ऐसा ना हो। और ताकि हम जो है इसको क्या करें, वाज़ेह करें, किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, जो नॉलेज रखते हैं। जो पहले के लोग थे बहनों, नाउजुबिल्लाह, वो लोग कुरान को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। क्या बोलते थे, ये पहले के अफसाने हैं, ये पहले के कहानियां हैं, ये आज का कुछ भी नहीं है, ओके। ये जो है ये मनगढ़ंत आपने खुद ही से क्या किया है, उसको बना दिया है, उसको लिख दिया है। यानी कुरान को वो लोग क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। रीजन क्या था बहनों, रीजन क्या था, क्योंकि कुरान तौहीद की बातें कर रहा है, कुरान कह रहा है कि एक अल्लाह को मानो। और कहीं ना कहीं मुशरिक जो है इस बात को कबूल करने को तैयार ही नहीं थे। वो लोग क्या बोलते थे पता है नबी पाक सल्लम को, कि तुम कुछ भी करो, इस कुरान को नाउजुबिल्लाह बदल दो, इसमें जितने भी आयते तौहीद के हैं ना उसको हटा दो, वो हट जाएंगे ना तो हम लोग तुम्हारे इस्लाम में आ जाएंगे। बस एक अल्लाह मत बोलो, अल्लाह के साथ हम लोग को शिर्क कामें करने दो। ये पहले भी होता था, ये आज भी हो रहा है बहनों। हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह को ही, एक अल्लाह की ही हम इबादत करते हैं, पर साथ साथ हमारे जिंदगी में भी ऐसे बहुत से शिर्क कामें हैं जो आज हम सब मुसलमान कर रहे हैं, जानकर
कर अनजान कर सब कर रहे हैं बहनों। इसके लिए मैंने कहा ना कि हम जो है वो जितने भी 20 से ज्यादा जो शिर्क कामें होते हैं वो सब हम इंशाल्लाह बताएंगे, आगाह करेंगे, आंखें खोलेंगे। हम सबको हमारे आंखें खोलना है, जानना है क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो वापस से रिपीट कर देती हूँ बहनों, और इसी तरह हम खोल खोल के बयान करते हैं आयतों को, ताकि वो कहे, यानी कि वो बोले कौन, जो काफिर है, कि तुम तो पढ़े हो, और ताकि क्यों, ताकि हम वाजे करें, यानी खोल खोल कर बयान करें उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। यानी कि ये सब आयतें अल्लाह ताला क्यों अच्छे से क्लियर कर रहे, यानी कि हमारे नबी पे ब्लेम भी नहीं करना चाहिए कि देखो हमारे नबी ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं ना, जो लोग तहमतें लगा रहे थे हमारे नबी पे, गलत गलत इल्जाम लगा रहे थे, एक तो ये, और दूसरा वाजे क्यों कर रहे थे, ताकि जो लोग नॉलेजेबल है, जिनके पास इल्म है, उनको भी क्या हो जाए, ये आयतें समझ में आ जाए। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी आयत नंबर 105। सबको बहनों ये आयत समझ में आई? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको क्लियर है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बहनों, नॉलेज बहुत जरूरी चीज है ना? अगर नॉलेज नहीं रहेगी ना कुरान की, हाँ, ये आयतों की अगर हमको नॉलेज नहीं रहेगी ना बहनों, तो कोई फायदा ही नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, मेरे घर में मेडिसिन बॉक्स है ना, लूज मोशन स्टॉप होने की, उल्टियां स्टॉप होने की, सर के दर्द की, सबकी, बुखार की, सबका पास घर में रहता ही है मेडिसिन बॉक्स, है ना? अगर वो चीज का इल्म नहीं रहेगा और अल्लाह ना करे हमको कुछ हो गया, तो कैसे पता चलेगा कौन सी दवाई कब खाना? जैसे सर का दर्द ही आया बहनों, हाँ, अगर नॉलेज ही नहीं रहेगा तो कोई इंसान वो दवाई ही नहीं खाएगा, करेक्ट? तो बहनों नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से बहनों ये कुरान का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला तो वाजे कर रहा है, क्लियर कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है एक एक आयत को, तो हम भी क्या करें, इन आयतों को समझे। यहाँ पे जितने भी बहनें बैठी है, काम कर रही है, या कोई चौर कर रही है, तो बहनों कम से कम कान खोल के गौर और फिक्र से सुने, तभी क्या होगा, फायदा पहुंचेगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब करना क्या है, अल्लाह ताला वो भी कह रहे, इत्तबा करो, यानी फॉलो करो जो वही की गई है आपके तरफ, आपके रब की तरफ से। जजाकल्लाह। अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि फॉलो करो, यानी कि तुम जो है वो पैरवी करो, जो अल्लाह ताला ने तुमको वही किया है। क्या वही किया था अल्लाह ताला ने? इस कुरान को, है ना, हदीसों को, सुन्नतों को, जो अल्लाह ने तुम्हें पैरवी किया है, जो तुमको अल्लाह ताला, सॉरी, जो अल्लाह ताला ने तुमको वही किया है, उसको तुम क्या करो, फॉलो करो, पैरवी करो। और नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके। बार बार ये क्यों कहा जा रहा है बहनों, बार बार ये क्यों कहा जा रहा है? ताकि ये अजमत और बड़ाई हमारे दिल में भी उतरे, हम भी हमारी जिंदगी में जो शिर्क कामें कर रहे हैं वो निकल जाए। मुशरिक को तो जानबूझ के कहा जा रहा है, क्योंकि वो एक अल्लाह को मानने को तैयार नहीं थे, है ना? और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ऐसे मुशरिकों से क्या करो, एराज करो। अब देखो बहनों, जैसे कि मैंने कहा ना, वीडियोस जब आएंगे तो हमको हमारी जिंदगी में टेस्ट करना, टटोलना है कि मेरे जिंदगी में कौन से शिर्क काम है। दूसरों का देखकर हम लोग बोलते हैं अरे ये मुशरिक है, ये मुशरिक है, तो उनको क्या करना है बहनों, उनसे झगड़ा नहीं करना है, उनसे जो है वो दरगुजर करना है, एहसास करना है, माफ करना है। उसको हम बताए, प्यार मोहब्बत से बताए, है ना, देखो भाई तुम्हारी जिंदगी में ये शिर्क हरकतें हो रही है, देखो शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, उसको समझा दे, बता दे, है ना? मगर उनसे जो है वो लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बहस नहीं करना है। और ये तो मुशरिकों से कहा जा रहा है बहनों। अल्लाह ताला मुशरिक जो अल्लाह के साथ शिर्क काम कर रहा है, उसी के साथ कह रहा है कि उससे एराज करो, उससे दूर हटो, है ना, उससे जो है वो इग्नोर करो, है ना, तवज्जो ना दो। जब मुशरिक लोगों के साथ ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस मत दो, तो सोच के देखो बहनों, हम घरों में कितनी ऐसी बातें हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, घर में लड़ाई लड़ते हैं, ऐसी बातें, ऐसे कामें हमारे घर में होते हैं बहनों, मुसलमानों के साथ ही होते हैं ना। हमारे तो घर में मुसलमान है, हम लोग कितनी बातों से और कामों से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और लायानी बातें करते रहते हैं, है ना। इस्लाम की खूबसूरती क्या है बहनों, की लायानी से बचे।
تو بہنوں یاد رکھے یہ سب جو آیتیں ہیں نا یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے, ہماری اصلاح کرنے کے لیے بہنوں, کہ ہم کو جو ہے وہ اگر کوئی مشرک ہے تو اس سے کیا کرنا ہے, دور رہنا ہے, یعنی کہ اس سے اعراض بترنا ہے, یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ بھی غلط نہیں کرنا, جھگڑنا نہیں ہے, بحث نہیں کرنا ہے نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں, ہم جی جو ہے وہ کیا کرے, ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ بالکل نہ لڑے, بالکل جو ہے لایانی باتیں, لایانی کامیں نہ کرے. ہمارا پورا ٹائم تو اسی میں چلا جاتا ہے نا. آپ گھر کے کام کرتے ہوئے کلاس جوائن کر سکتے ہیں نا, بچے چھوٹے, یس یس یس, آپ لوگ جو ہے اگر ایسا ہے تو ضرور کلاس جوائن کرے. گھر کے کام کرنا بھی ضروری ہے مگر غور و فکر سے سنیں, اوکے. اور اگر سمجھ جاؤ کچھ چھوٹ جاتا ہے, کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے, تو ہماری ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ یوٹیوب پر آ جاتی ہے, تو آپ لوگ وہاں پر جا کے ضرور سنیں اور ضرور نوٹ ڈاؤن کریں. میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں بہنوں کہ اول تو یہاں شیطان آنے نہیں دیتا, آنے دے گا تو سننے نہیں دے گا, سننے دے گا تو غور و فکر کرنے نہیں دے گا, غور و فکر کرنے دے گا تو عمل کرنے نہیں دے گا. وہ چاہے گا ہی نہیں کہ ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھے, جانے, عمل کرے. وہ ہم کو اس سے دور رکھے گا بہنوں, جتنا ہو سکے ہم کو اس سے دور رکھے گا, قرآن سے دور رکھے گا ہم کو. تو ہم کو کیا کرنا ہے نا, انشاءاللہ غور و فکر سے بیٹھنا ہے, توجہ سے سننا ہے. گھر کے کام میں رہتے ہیں, میں نہیں کہتی, مگر جتنا ہو سکے ہم دھیان سے سنیں, سمجھے, ہم اصلاح کی نیت سے بیٹھے, ہماری اصلاح ہو جائے. ہمارے گھروں میں جو لایانی باتیں, لایانی کام ہم لوگ ڈیلی لائف میں کرتے ہیں بہنوں, اس سے ہم کیا کریں گے, بچیں گے. یہ بہترین آیتیں ہیں بہنوں, ہے نا, کتنی بہترین آیتیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ ہماری کیا بول رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے, اوکے, یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی تھی, آیت نمبر 106 میں, اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ زندگی گزارنے کا بیسٹ فارمولا بتا رہے نا, کہ ایک تو تم پیروی فالو کرو جو وحی کی گئی, قرآن اور سنت کو فالو کرو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, ہاں, اور کیا کرو, مشرکوں سے اعراض کرو, ہے نا. ہم کو جو ہے وہ جھگڑنا نہیں ہے, برا بھلا نہیں کہنا ہے. دیکھو نیکسٹ آیت آئے گی انشاءاللہ. اور اگر اللہ چاہتا نہیں وہ شرک کامیں کرتے, نہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتے. دیکھو بہنوں یہ جو آیت ہے نا, یہ آج بھی لوگ اس آیت کو لے کر آ کے بولتے, دیکھو قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم شرک کام نہیں کرتے. مطلب کیا, تو شرک کام جو کر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے نا, اللہ کی اجازت سے کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے بہنوں, یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کن کہتا اور فیکون ہو جاتا. اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ سب کو روک سکتا تھا, ہے نا, جبرن سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روک سکتا تھا, زبردستی. پر اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسا زبردستی کا معاملہ نہیں پسند. ایسا جو ہے نا, ایسا جبرن ایسا کام کرنا اللہ کو نہیں پسند. دیکھو ایک ماں بھی ہے نا بہنوں, بار بار اپنے بچے کو سمجھاتی ہے. اللہ کو جو ہے وہ کسی مثال کی ضرورت نہیں, پر یہ مثال ہمارے لیے بہنوں کہ ہمارے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے نا, ہمارے ممی ہم کو بولتے ٹھنڈا پانی مت پی, گلا خراب ہوئے گا, کھانسی آئے گی, سردی آئے گی. بچہ نہیں سنتا, بچہ اپنی منمانی کرتا, وہ ٹھنڈا پانی ہی پیتا ہے. ماں روکتی ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے بہنوں کی ماں بولتی ہے جا, جو کرنا ہے کر, تو نہیں سنتا نا, جا اب پی, کتنا پینے کا پی. جب گلا خراب ہوئے گا, سردی آئے گی, تب تیرے کو پتا چلے گا کہ ماں تیرے اچھے کے لیے ہی بولتی تھی. یہ میرے ساتھ بچپن میں ہوتا تھا بہنوں, میرے ممی مجھے بہت بولتے تھے, یعنی کہ رات کو ہم لوگ بہت کھانستے تھے, تب ممی دن بھر بولتے تھے ٹھنڈا پانی مت پیو, سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہم لوگ بولتے تھے نہیں ممی دیکھو پی کے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے, دیکھو ممی پی کے کچھ نہیں ہو رہا ہے. پر اس کا اثر کب ہوتا تھا پتا ہے, تب کا تب نہیں ہوتا تھا بہنوں. رات میں جب ہم لوگ سوتے تھے, اتنا میں کھانستی تھی, میری نیند خراب, سب کی نیند خراب, صحت خراب. تب احساس ہوتا تھا کہ اللہ کاش میں میری ماں کی بات سن لیتی, ممی کتنا اچھا بولتے تھے, اچھے کے لیے بولتے تھے, کاش میں سن لیتی, ہے نا. تو ویسے ہی بہنوں اللہ تعالیٰ سب بتا رہے, شرک کام میں مت کرو. مگر جب جو لوگ ہیں وہ سنتے ہی نہیں ہے, ضد کرتے, ہے نا, ہٹ ڈرمی کرتے, تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو, ہے نا. چھوڑ دیے ان کو, ان کے حوالے کیا کر دیے, چھوڑ دیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہی بتا رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہیں وہ شرک کام کرتے, نہیں, اور نہیں ہم نے بنایا ہے آپ کو ان کے اوپر کیا,
हाफिज, यानी अल्लाह ताला ने आपको उनके ऊपर एक निगरान, एक वॉचर नहीं बनाया है, और ना ही अल्लाह ने आपको इनके ऊपर क्या बनाया है, वकील बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। यानी कि अल्लाह तबारक ताला जो है एक दाई की सिफत बता रहे बहनों, ओके, कि हमारा काम सिर्फ क्या है कि हम जो है वो क्या करें, खुशखबरी दे, बशीर नजीर उनको डराए, है ना। यानी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर थे, नजीर थे, दाई थे, सिराजुन मुनीरा थे। यानी हमारे नबी ने भी क्या किए, उनको डराए, उनको समझाए, उनको खुशखबरियां दिए, उनको सब तरीके से दावत दिए। अगर सुनते हैं तो वो उनका ही भला है, अगर नहीं सुनते हैं तो उनका ही नुकसान है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उनके जो गलत कामों के जिम्मेदार नहीं है। हमारे नबी से सवाल किया नहीं जाएगा, हमारे नबी से हिसाब किताब नहीं किया जाएगा। हमारे नबी का काम सिर्फ क्या है, पैगाम को पहुंचाना। उसी तरह बहनों हमारा काम भी क्या है, सिर्फ पैगाम को पहुंचाना। अगर वो सुनते नहीं है, नहीं समझते हैं, तो हमसे जो है हमारी पकड़ नहीं होगी। अच्छा, हमसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, मगर हाँ, मैं अगर उनको समझाती भी नहीं हूँ, बताती भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं बोलती हूँ, मैं चुप रहती हूँ, हाँ, तो फिर गलत है ना। देखो बहनों, ईमान के 3 दर्जे, बहनों याद रखना, ईमान के 3 दर्जे। अव्वल, अपने हाथों से रोको। सेकंड, अपने जुबान से बोलो। थर्ड, अपने दिल में उसको बुरा जानो। जैसे कि समझो बहनों, मेरे बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो मैं जाके अपने हाथ से वो रिमोट कंट्रोल उठा के ऑफ कर सकती हूँ, मेरे बच्चों पे मेरा जोर है। अगर मेरे शौहर देख रहे हैं तो मैं अपनी जुबान से बोल सकती हूँ कि प्लीज मत करो, गुनाह है, गलत है। हाँ, मैं हाथ से बंद नहीं कर सकती, है ना, मेरे शौहर है वो, मगर जुबान से मैं बोल सकती हूँ। और अगर वहीं पे मेरे सास ससुरे बैठ के देख रहे हैं, तो ना मैं उनको हाथ से रोक सकती हूँ, ना मैं जुबान से बोल सकती हूँ। मैं इतना, मेरा ईमान नहीं है, तो मैं कम अज कम मेरे दिल में बुरा जानूं कि अल्लाह ये जो भी कर रहे, गलत कर रहे, गुनाह कर रहे, या अल्लाह तू उनकी हिदायत के फैसले कर। ये 3 दर्जे है बहनों। ये तीनों में से एक दर्जा भी अगर हमारे दिल में नहीं हुआ, या हमारे को कुछ भी असर नहीं हुआ, तो यानी हमारे अंदर ईमान ही नहीं है। गुनाह को गुनाह समझना है, गुनाह को गुनाह जानना है, गुनाह को देख के जो है हमारे दिल में एहसास होना है बहनों। समझ जाओ वो लोग नाच रहे, समझ जाओ वो टीवी देख रहे, मैंने गुनाह को गुनाह नहीं जानी, मेरे दिल में भी कुछ खटका नहीं है, उल्टा मैं क्या कर रही हूँ, तालियां मार रही हूँ, उल्टा मैं तो देख रही हूँ, उल्टा मैं तो जाते आते भी नजर वही है, तो फिर मैं भी वो गुनाह में क्या हो जाऊंगी, उसमें शरीक हो जाऊंगी बहनों। समझ में आ रहा है। जैसे कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने कभी गलत काम नहीं की थी बहनों, ओके। लूत अलैहिस्सलाम के जमाने में मर्द मर्द से गलत फेल कर रहे थे, उनकी बीवी ने कभी ये काम नहीं की, मगर उनकी बीवी ने क्या की, उस फेल को गलत नहीं जाना, उस फेल को सपोर्ट किया। और यही वो रीजन है कि जब अजाब उतरा तो उनकी बीवी पर भी उतरा। आया समझ में बहनों। तो गुनाह को गुनाह जानना है, 3 दर्जे है बहनों, आ रहा समझ में। तो यहाँ पर मैं यहाँ बोलूं, या हाथ से रोकूं, या कम से कम दिल में बुरा जानूं, ये तीनों भी नहीं करती हूँ, तो फिर मैं गलत हो जाती। समझ में आ रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ना ही उन पर निगरान है और ना ही वो क्या है, जिम्मेदार है। अगर वो लोग गलत करते हैं तो वो गलत किस पे है, उन्हीं पर आएगा, उन्हीं पर बबाल आएगा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उन पर कुछ भी जो है वो हिसाब किताब नहीं होगा। सबको यहाँ तक जो है वो समझ में आया बहनों। जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। आपा मुशरिक बोलते हैं, हाँ, क्या बोले, मुशरिक मुशरिक। मुशरिक जी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुशरिक जो शिर्क कामे करते हैं ना, उसको मुशरिक बोलते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अच्छा बहनों, सब लोग जाग रहे के सो रहे? जो बहने म्यूट नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, वो सब किधर है? जाग रहे, सो रहे, क्या कर रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आया मुबीन, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब जाग रहे, सब ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या होता है ना, दोपहर का टाइम है, हाँ, एक तो नहीं कुरान जागला की जागला अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो दोपहर का टाइम, एक पर से कुरान की बारे में है ना, अच्छी रहमत उतरती है, फिर अच्छे से नींद भी आ जाती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, जागेंगे, गौर व फिक्र से सुनेंगे। बहुत सारी बहनें रोजा भी रहेगी, है ना, तो फिर और भी नींद के झोंके आते हैं।
है ना, समझ सकती हूँ बहनों में। इंशाल्लाह अल्लाह से मांगेंगे कि अल्लाह ताला हमारे लिए क्या करे, आसानी करे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बहनों सुनो, अब यहाँ पे एक बात जो है वो बतानी थी आप लोगों को। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि अगर ये जबरन ऐसा होता ना बहनों, हाँ, तो अल्लाह भी कहते कुन फयाकुन हो जाता, है ना। और यहाँ पे उमर ताला अन्हु, देखो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम दिल के थे, मगर हजरत उमर कैसे थे ना, बहुत ही बोलते ना, बहुत ही एकदम वो थे, बोलते ना, बहुत ही जैसे कि क्या बोलेंगे उनको, एक सेकेंड में सबको सबको म्यूट कर देती हूँ, सॉरी। एकदम जो थे ना, बोल्ड थे, है ना। तो अगर वो चाहते ना बहनों, हाँ, या कट्टर थे, यस, तो वो अगर चाहते तो वो तो जबरदस्त सबको इस्लाम पर लेकर आ जाते, है ना। पर ऐसा नहीं हुआ, है ना, ऐसा नहीं किए। यस, बहादुर थे, बहुत ही, वो तो ना, जैसे मूसा अलैहि सलाम कैसे थे वैसे थे वो, अगर चाहते तो जबरदस्ती सबको इस्लाम पर लाते, पर ऐसा नहीं है ना बहनों। इस्लाम पर लाना जबरदस्ती का मामला नहीं है, वहां पे इंसान को जो है वो खुद से ईमान लेकर आए, खुद से दिल से ईमान लेकर आए। यही अल्लाह ताला भी चाहता है। हम भी नहीं चाहते ना कि हमारे बच्चे या शौहर हमको जबरदस्ती मोहब्बत करे, नहीं, हम भी क्या चाहते हैं, वो दिल से करे, है ना। हम भी तो वही चाहते ना बहनों, कि जबरदस्ती का मामला तो किसी को भी नहीं पसंद। तो हम भी क्या करें बहनों, ये सब बातों को याद रखे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट आयत आ जाते हैं बहनों, जहां पर अल्लाह तबारक ताला हमसे क्या कह रहा है। ओके, मैं टर्न पेज कर देती हूँ। और ना ही तुम क्या करो, इंसल्ट करो या गाली दो उन लोगों को जो अल्लाह को छोड़ के क्या करते हैं, पुकारते हैं, इन्वोक करते हैं। यानी कि अल्लाह तबारक ताला जो है यहाँ पर क्या कह रहा है कि दूसरे गॉड्स की तुम लोग इंसल्ट मत करो। क्या होगा, वरना क्या होगा, वरना वो लोग भी क्या करेंगे, बुरा भला बोलेंगे अल्लाह को, दुश्मनी में, नादानी में, बगैर इल्म के। यानी कि देखो बहनों, अगर मैं किसी को कुछ अब उनके गॉड्स के बारे में बुरा भला बोलूंगी, तो वो लोग पलट के क्या करेंगे, अल्लाह नाउज़बिल्लाह, हमारे अल्लाह के ऊपर कुछ भी बुरा भला बोलेंगे, है ना। ये दौर चल ही रहा है। अब ये तो मुश्रिकों का दौर है बहनों, आज तो ऐसा हम लोग कभी करते नहीं है ना। हम लोग कभी जाके किसी नॉन मुस्लिम को जाके हम लोग ऐसा इंसल्ट नहीं करते। अगर वो खुद दीन में इंटरेस्ट लेता है, हमारे इस्लाम के बारे में पूछता है, या हमसे कोई सवाल करता है, तो हम लोग हिकमत से समझाते हैं, राइट। हम लोग किसी गॉड्स की इंसल्ट नहीं करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे तो यही बताया जा रहा है, नहीं करो, वरना वो करेगा। पर आज क्या दौर चल रहा है बहनों, आज क्या दौर चल रहा है पता है। आज जो है मुसलमान को ही, एक मुसलमान का फिरका दूसरे मुसलमान वाले फिरके को गालियां दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है। आज मुशरिक का दौर चला गया। आज जो है ऐसा दौर चल रहा है कि एक इमाम साहब या एक मौलाना वहां से कोई फतवा देता है, या वहां से कुछ बोलता है दूसरे मौलाना को, फिर दूसरे मौलाना, अभी क्या प्लेटफॉर्म चल रहा है, हाँ, ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उठा लिए है। फिर वो मौलाना वहां से एक वीडियो डालता है यूट्यूब में, और वो उसको जो है वो गालियां देता है। ये दौर चल रहा है बहनों, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। सोचो नॉन मुस्लिम्स क्या रिएक्ट करते होंगे बहनों, कि दूसरों की जरूरत ही नहीं है, मुसलमान खुद ही आपस में लड़ रहा है। जैसे कि माँ बोलती है दो बच्चे वहां पे बैठे थे, माँ बोलती तकिया लेकर आओ, अब दोनों भागे तकिया लाने। ओके, दोनों भागे तकिया लाने। अब माँ देख रही है दोनों आ ही नहीं रहे, हाँ, क्या हो रहा है बोले तो दोनों झगड़ रहे हैं वहां पे, तकिया मैं लेके जाऊंगा, तकिया मैं लेके जाऊंगा, दोनों झगड़ते खड़े। अल्टीम क्या होता है, माँ आती है, दोनों को झगड़े से रोकती है, और माँ बोलती है जाओ मैं ही तकिया ले लेती हूँ, है ना। यही हो रहा है बहनों, मुसलमान ही आज क्या हो रहा है, लड़ रहे हैं, या तो फिरकों में, या तो जमातों में। वो उसको काफिर बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है ये मुसलमान नहीं है, हाँ, ये सब हो रहा है बहन, हाँ। और ये सब चीजें सोशल मीडिया में हो रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है।
मैं ये इसलिए बता रही हूँ बहनों कि अगर हम ऐसे वीडियोस देखते हैं ये दुश्मनी के, ये नफरत के, तो हमको ये सब चीज से क्या करना है, बचना है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको शिर्क के वीडियोस भी आएंगे ना, आप किसी को पिन पॉइंट मत करना, आप किसी का भी नाम वहां पे मत लेना। हमको क्या करना है, हमारी खुद की इस्लाह करना है, हमको खुद को सही होना है। हम दूसरों को क्या सही करेंगे, हम खुद कितने गुनहगार हैं, हम खुद कितने शिर्क कामें करते हैं ना। हमको सिर्फ क्या करना है, पैगाम पहुंचाना है। जैसे एक पोस्टमैन होता है बहनों, पोस्टमैन को टेलीग्राम, लेटर, पार्सल जो भी उसको दिया जाता है वो बराबर जाके उन घरों में दे देता है। उसका काम सिर्फ क्या है, पहुंचाना। अब वो घर वाले उस लेटर को लेते हैं कि नहीं, उस लेटर को पढ़ते कि नहीं, उस लेटर को फाड़ देते, उस चीज को नहीं क्या करते करते, वो उनका उनका काम है, वो उनका जिम्मेदारी है। पोस्टमैन का काम सिर्फ क्या था, उन घरों तक पहुंचा देना। करेक्ट। उसी तरह बहनों हमारा भी काम क्या है, दीन को फैलाना, दीन को हर एक को पहुंचाना। हमारा काम सिर्फ इतना है। अगर वो कबूल करते हैं वो उनका ही फायदा है, अंधे बनते हैं उनका ही नुकसान है। हम उनके ऊपर निगरान नहीं है, हम उनके कोई जिम्मेदार नहीं है। समझ में आ रहा है। और हमको उनके बारे में बुरा भला भी नहीं कहना है, वरना बोलते ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, फिर वो भी क्या करेंगे, बुरा भला बोलेंगे, है ना। बहुत ये सब चीजें ना बहनों हमारे डेली लाइफ में भी लेके चलना है। देखो, एक माँ होती है बच्चे को सुधारने के लिए, और एक माँ ही होती जो बच्चे का फ्यूचर बिगाड़ देती है। यानी कि वो एक बहन बता रही थी कि वो नमाज नहीं पढ़ती, और रीजन उसका यही है कि उसको बचपन में नमाज की वजह से इतना टॉर्चर किया गया था उसकी माँ की तरफ से, कि वो आज भी उस बात को याद करके उसने क्या बदला लिया अपने माँ से, पता है, उसने नमाज ही नहीं पढ़ती। हालांकि वो गलत है, वो कोई सही नहीं है, पर रीजन क्या हो गया बहनों, सोच के देखो। यानी प्यार मोहब्बत से अपने बच्चों को भी तरबियत करना है, इतनी सख्ती नहीं करना है, इतने ताने नहीं करना है। मालूम पड़ा है ग्लास फेंक के तुमने पानी मार के बच्चे को उठाए, वो बच्चा पता है बहनों क्या करेगा, वो जान मुझ के नमाज नहीं पढ़ेगा, बोलेगा जाओ भाड़ में जाओ, मैंने पढ़ूंगा ही नहीं। समझ में आ रहा है। वो बच्चे को हट डर्मी, उस बच्चे को गंदा बुरा एक हम लोग ही कर देते तरबियत के लाइन से। तो यहाँ पे तरबियत भी बहनों बहुत सही तरीके से करना है। ऐसा जुल्म करके, ऐसा गंदगी से नहीं तरबियत करना है कि वो इस्लाम से भागे, वो अल्लाह से भागे, वो कभी इसकी तरफ नहीं आए, ऐसा नहीं करना है। अगर आजकल जो है वो ईशा की नमाज इतने 17 रकात पढ़ो, वो जो बच्चा अभी अभी आ रहा है इस्लाम में, अभी अभी अल्लाह अल्लाह करके चालू कर रहा है, उसको ऐसा बोलेंगे तू 14 रकात पढ़, तू 12 रकात पढ़, तू 17 रकात पढ़, वो बच्चा भाग जाएगा बहन। समझ में आ रहा है। उसको आहिस्ता 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 उसके दिल में मोहब्बत जगाना है। आज क्या रीजन है कि हमारी बच्चियां गैर मुसलमान लड़कों के साथ भाग रही है, गैर मुसलमान के साथ रहती, वो बोलती है क्या फर्क पड़ रहा है ना। क्या फर्क पड़ रहा है कि भाई वो भी तो वैसा ही है जैसी मैं हूँ, भाई नाम का फर्क है बस। क्यों? क्योंकि मैं भी तो वैसी नहीं हूँ, वो भी वैसा है, बस उस लोग को वही चीज पसंद आ जाती है। समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत नहीं डाली, नबी की मोहब्बत नहीं डाले, इस्लाम की बुनियाद उनके दिलों में बचपन से हमने नहीं डाले। हमने इतना गलत तरीका उनको, अल्लाह मारेगा, अल्लाह जलाएगा, अल्लाह जहन्नम में डालेगा, हमने इतना नेगेटिविटी बता दिया कि वो बच्चा क्या हुआ, इस्लाम के करीब आने के बदले वो दूर हो गया। तो ऐसे हमको नहीं बनना है बहनों। उसके दिलों में, बच्चों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत डाल दो, अल्लाह की मोहब्बत जगा दो बहनों। समझ में आ रहा है। फिर देखना बहनों, हम रहे ना रहे, हमारा बच्चा अल्लाह से कनेक्टेड रहेगा। वो कॉलेज जाए, स्कूल जाए, ऑफिस जाए, दुकान में जाए, कहीं भी जाए, वो उसके दिल जहन में क्या रहेगा, अल्लाह तबारक ताला रहेगा बहन। आ रहा समझ में। हमको हमारे अल्लाह की मोहब्बत हमारे बच्चों के दिलों में डालना है, इतना डालना है, इतना डालना है, इतनी बुनियाद उनकी मजबूत करना है कि वो गैर मुसलमान और मुसलमान का फर्क जान जाए, और कभी ये लव ट्रैक के चक्कर में नहीं आएंगे बहनों, लड़का हो या लड़की हो, वो समझ जाएंगे, फर्क समझ जाएंगे। आया समझ में। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे बच्चों के जो ईमान है वो कमजोर थे। अगर हमने हमारे बच्चों के ईमान मजबूत करते तो ये कभी ये दिन देखना नहीं पड़ता। बच्चों को जब घर में मोहब्बत नहीं मिलती, घर में ताने मिलते, घर में ऐसा जुल्म होता है, तो बच्चे फिर बाहर जाके मोहब्बत ढूंढते।
سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو ہمارے گھر جو ہے وہ جنت بنے، ہمارے گھر جو ہے اتنے محبت اتنے اچھے بنے کہ ہمارے بچے جو ہے پھر باہر کہیں پر بھی منہ نہ مارے، ہمارے بچے ہمارے طرف آئے، اپنا اتنا ان کے قریب رہے کہ وہ ہم سب سیکریٹس ہم سے شیئر کرے کہ آج ایسا ہوا، آج ویسا ہوا، آج یہ ہوا، آج وہ ہوا، سب سننا بہنوں۔ اس وقت غصہ مت کرنا، اس وقت ایک دم سائلنٹلی سننے کا بچے کی ہر بات، اور پھر اس کو پیار اور محبت سے سمجھانے کا۔ ہم لوگ نے ڈانٹ دیے، چلا دیے، سزا دے دیے، پھر نیکسٹ ٹائم ہمارا بچہ آ کے ہم کو کوئی بات شیئر نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم بھی بہت غلطیاں کریں، ہمارے بچے بھی غلطیاں کریں گے، ہماری غلطی ان کی غلطی، ہم لوگ بولتے ہیں اللہ تو نے ایسا کیسا کری ہے نا، ارے ایسا کیسا ہو گیا، نہیں، ہم کو بھی سمجھنا ہے کہ وہ بھی کیا ہے، بشر ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے گناہ کر لو وہ معاف کر دیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ ہم لوگ ہمارے بچوں کے ایک ایک چیز کو پکڑ لیتے، تو کیسا کری ویسا کری ہے نا، ایسا نہیں کرنا ہے بہن۔ اوکے، تو انشاءاللہ ہم یہ سب باتوں کا خیال رکھے۔ اور بہنوں جیسے دیکھو نا، ہم لوگ جب جاتے ہیں سوئی ڈالنے، انجیکشن لینے بہنوں، تو کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو اتنا انجیکشن ایک چبھنے کی چیز ہی ہے بہنوں، درد ہوتا ہی ہے، مگر جب وہ انجیکشن ڈالتے ہیں، کچھ ڈاکٹرز جب ڈالتے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا کہ انجیکشن دے بھی دیے، اور کچھ کے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت درد دیتا ہے، ڈالنے کے ٹائم بھی اور ڈالنے کے بعد بھی، ہے نا۔ تو اسی طرح بہنوں یہ جو دین کی باتیں ہیں وہ سامنے تھوڑی سی کڑوی لگتی ہے، تھوڑی سی بٹر لگتی ہے۔ اب میں بولوں گی شرک مت کرو، شادیوں میں ایسا مت کرو، تو کہیں نہ کہیں وہ لوگ کو خراب لگے گا، چبھے گی وہ بات، مگر اگر میں وہ بات کو پیار، محبت، نرمی، عاجزی اس کے ساتھ کری تو وہ بات خراب نہیں لگے گی۔ اگر میں وہی بات کو تانے مار کے، چلا کے، سب کے سامنے ہلا گلا کر کے کروں گی تو وہ باتیں بہت چبھے گی۔ نہیں سدھرنے والا بھی کیا آئے گا، نہیں سدھرے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو یہ سب باتیں ہم کیا کریں، یاد رکھیں۔ اول تو کسی کو بھی ہم گالی نہ دیں۔ اگر میں کسی کو ماں بہن کی گالی، جو آج کل ہمارے بچوں کے منہ پہ بہت ہے بہنوں، اگر میں دوں گی تو سامنے والا بھی دے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے، تو کہا کہ کیسے دیں گے، تو کہا کہ جب تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو ہم کو یہ کام سے بھی کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ یس، ہم کو ایک ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے بہنوں، ہے نا۔ ہم انشاءاللہ جو ہے سب کو معاف کرے، درگزر کرے، پیار محبت نرمی کے ساتھ رہے۔ یہ دعوت کا کام تو ایسا ہی ہے نا بہنوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ فرعون جیسے بندے کو، جو خود رب ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کے ساتھ نرمی سے بولو، ہاں۔ اور ہم ہمارے خود کے بھائی بہن، ماں باپ، بچوں کے ساتھ کتنی سختیاں کرتے ہیں نا، جو کہ ایسے دعوے بھی نہیں کرتے، ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم اس بات کا کیا کریں گے، لحاظ رکھیں گے۔ اوکے، تو کیا کہا گیا، نہیں تم انسلٹ کرو ان لوگوں کی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا، وہ اللہ کی انسلٹ کریں گے نادانی میں، بغیر علم کے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزین کرتا ہے، خوبصورت کرتا ہے ہر امت پر ان کے اعمال۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے بہنوں، یہ لوگ جو غلط کامیں کر رہے ہیں، جو شرک کامیں کر رہے ہیں، ہے نا، اس میں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنی انرجی لگاتے ہیں، پیسے ویسٹ کرتے ہیں، ہے نا۔ کتنے ان کے ریچولز ہے بہنوں، ٹریڈیشنز ہے، جس میں وہ لوگ پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ مسلمان بھی جو شرک کامیں کر رہے ہیں، جو نیاز فاتحہ ہے نا، کیا کیا کرتے ہیں بہنوں، اس میں وہ پابندی کے ساتھ کرتے، پیسے ضائع کرتے، انرجی ضائع کرتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کر دیا، ان کو جب دعوت دی گئی نہیں سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دیا۔ اور ایسے چیز پھر کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، ان کے اعمالوں کو ان پر مزین کر دیا۔ پھر وہ اسی کی طرف کیا ہوں گے، تمہارا لوٹنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے گا جو کچھ بھی تم عمل کرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، آج جو کرنا ہے کر لو، کل کے دن یہ سب چیز کا کیا ہوگا، حساب کتاب کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اب یہاں پر میں اور تم سمجھاتے ہیں ہمارے گھر والوں کو، نہیں سمجھتے ہے نا، کرنے کا کام کرتے ہیں، دیکھو تو یہی چیز ہے نا، کر لو جو کرنا ہے کر لو، کل کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو بتائے گا جو کچھ بھی تم عمل کرتے تھے، یہاں پہ حساب کتاب کیا جائے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی एकदम पुख्ता, تو ان کی قسمیں یعنی کہ وہ لوگ جو ہے strongest of their oaths, یعنی کہ وہ لوگ جو ہے بہت بڑی بڑی بہت ہی strong قسم کھاتے ہیں. کیا قسم کھا کے بولتے ہیں کہ ضرور اگر ان کے پاس آ جائے گا کوئی نشانی, ضرور وہ کیا کریں گے, اس پر یقین کریں گے, اس پر ایمان لائیں گے. اب یہاں پہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں آ گئی تمہارے سامنے, خود نبی پاک وقت کے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مطلب وہی اتر رہی ہے. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے بہنوں, ان کے ساتھ اور کیا معاملہ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہاں پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, قرآن ہے, پھر ان کے سامنے اتنے بڑے بڑے نشانیاں ہیں, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند جو تھی, یہ منظر ہو چکا تھا, سپلٹنگ آف دا مون ہو چکا تھا, چاند 2 ٹکڑوں میں دکھا چکے تھے. یہ سب بڑے بڑے منظر دیکھ کے بھی وہ لوگ کیا بول رہے کہ اگر کوئی نشانی آ جائے گی تو ہم لوگ کیا کریں گے, ایمان لائیں گے. کہہ دو, کیا کہہ دو کہ جو بھی نشانیاں ہیں وہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. یعنی کہ اگر نشانی آنا بھی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی آئے گی, میرے ہاتھ میں نہیں ہے, ہے نا. اور کیا چیز تم کو بتائے کہ اگر جب وہ آ بھی جائے گا, یعنی کہ وہ نشانی آ بھی جائے گی تو تم ایمان نہیں لاؤ گے. یعنی کہ واٹ از دا پروف کہ تم ایمان لاؤ گے. ہاں, ابھی اتنے بڑے بڑے نشانیاں رہ کر بھی تم ایمان نہیں لا رہے, تو کیا بھروسہ کل کے دن وہ نشانی تمہارے سامنے بھی آ جائے, تمہارے قریب بھی آ جائے گا, تو بھی تم کیا کرو گے, ایمان نہیں لاؤ گے. یعنی جو کفار مکہ تھا, جو مکے کے کفار تھے, یہ بار بار بول رہے نشانی لاؤ, نشانی لاؤ. اور اتنی بڑی نشانی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے. قرآن کو بھی وہ لوگ کیا بول رہے تھے کہ پہلے کے افسانے ہیں, چاند کو ٹکڑے ہوئے دیکھ کر بھی کیا بولے کہ یہ تو میجک ہے, یہ تو سحر کیا گیا ہے نا. تو یہاں پر اتنے بڑے بڑے نشانی دیکھ کر بھی یہ لوگ کیا کر رہے تھے, ایمان نہیں لا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان سے یہی کہہ رہا ہے کہ کیا معلوم, ہو سکتا ہے کہ تم ریئلائز ہی نہیں کرو کہ ایسی نشانی آ بھی جائے گی اور تم کیا کرو گے, ایمان نہیں لاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا, ایسے لوگ جو اتنے ہٹ درمی ہے, اتنے ضدی ہے, دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے, ہے نا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرے, معاملہ کرے گا. یہ لاسٹ آیت آف دا پارا ہے, بہت ہی امپورٹنٹ آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مکمل کرتا ہے اس پارے کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو. یعنی کہ جس طرح جیسے کہ نہیں وہ ایمان لائے تھے ساتھ اس کے پہلی بار, یعنی کہ پہلی بار وہ لوگ نے ایمان نہیں لائے تھے, یہ دیکھ کر بھی انجان ہو گئے تھے. وہ سمجھ گئے تھے بہنوں کہ یہ حق ہے, یہ صحیح ہے, ان کو سب پتا تھا بہنوں. دیکھ کر بھی یہ لوگ کیا ہو گئے تھے, انجانے ہو رہے تھے, نہ سمجھی کے کام کر رہے تھے, اگنورنٹ ہو رہے تھے. جہالت دیکھو بہنوں کتنی جاہلت تھی نا, کہ سب دیکھ رہے پھر بھی نہیں مان لا رہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ جیسے کہ پہلی بار تم نے دیکھ کر بھی اندیکھا کرا, تم نے ایمان نہیں لائے, تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, تمہارے دلوں کو اور تمہارے آنکھوں کو کیا کر دیں گے, پھیر دیں گے. اور ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے, چھوڑ دینا ہے ان کے سرکشی میں وہ اندھے بھٹکتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے بہنوں, چھوڑ دینا ہے. یعنی ایسے لوگ جو نہیں سمجھتے نا, ہاں, جو دیکھ رہے کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں, حق ہے, سچ ہے, سب کچھ صحیح ہے, پھر بھی یہ لوگ کیا کر رہے تھے, ہاں, حق کا انکار کر رہے تھے, نافرمانی کر رہے تھے, شرک کام پسند کر رہے تھے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیا کرو, ان کے سرکشی میں رہنے دو. وہ اندھے بھٹک رہے ہیں, وہ گمراہ ہو رہے ہیں, ان کو اندھیرے میں پسند ہے نا. دیکھو بہنوں, ایک روم میں اندھیرا ہے, اگر مجھے وہاں پہ اجالا چاہیے تو میں لائٹ آن کروں گی. ان کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, اللہ تعالیٰ نے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, آج بھی ہمارے پاس ہے. اگر کوئی ان کو لے لیتا ہے تو زندگی میں نور آ جائے گا, زندگی میں چمک آ جائے گی, زندگی میں روشنی آ جائے گی. اگر یہ دیکھ کر بھی اگر کوئی نہیں لے رہا ہے تو پھر وہ کہاں جائے گا, وہ اندھیرے میں ہی رہے گا. وہ پسند کر رہا ہے اندھیرے میں رہنا, تو اللہ بھی کیا کرے گا, اس کو اس کے اندھیرے میں اس کو چھوڑ دے گا, اندھیرے میں اس کو چھوڑ دے گا. وہ جو سمرین تھی بہنوں,
वो जो नीचे जमीन में गई थी, वहां पे इतना अंधेरा बहनों कि सूरज की रोशनी जाती नहीं है, तो इतना अंधेरा जो कुछ नहीं दिखता बोलते बहनों, वहां पे कुछ नहीं दिखता है, वहां पे कोई वाईफाई कनेक्शन भी नहीं जाता है, वहां पे कुछ भी नहीं दिखता है, और वहां पे अंधेरा और इतना प्रेशर बोलते, इतना प्रेशर कि जैसे एक उंगली पर एक हमारी जो उंगली है ना बहनों, एक उंगली के कोने पर, ओके, नाखून है ना, नाखून, उतने हिस्से पर अगर एक हत्ती खड़ा हो जाए, हाँ, अगर मेरे नाखून के इतने हिस्से पर अगर एक हत्ती खड़ा हो जाए तो कितना प्रेशर पड़ता है ना बहनों, उतना प्रेशर उसके बोट पे था बहनों, वो सबमरीन पे था। सोचो वो प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर सका हो। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। मतलब जब मैं ये डॉक्यूमेंट्री देखी तो मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह बोलते ना, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला जो है वो हर चीज कर सकता है, और अल्लाह ताला हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। आमीन आमीन आमीन। तो अल्लाह ताला जो है, यहाँ पर हमारा सबक खत्म होता है, मुकम्मल होता है। अल्लाह तबारक ताला हम सबको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमारे यहाँ पे बोलने को सुनने को कबूल करे। अल्लाह ताला जो है, जितनी भी अच्छी बातें थी वो अल्लाह की तरफ से थी, और जितने भी गलती कोताही थी वो मेरी तरफ से थी। मैं अल्लाह से माफी चाहती हूँ, और आप बहनों से भी माजरत चाहती हूँ। अल्लाह ताला जो है हमको इन आयतों पे चलने वाला बना दे, और हम हमारे सूर्य हमारा आज पारा जो मुकम्मल हुआ है, अल्लाह तबारक ताला इसको कबूल करे, ये पूरे पारे को कबूल करे। इस पूरे पारे में जो गलती कोताही थी अल्लाह माफ करे। अल्लाह ताला हमको ये 7वां पारा खत्म तो हो चुका है बहनों, पर क्या मेरे जिंदगी में फर्क आए, 7 फर्क भी आए हैं क्या? हाँ, मेरे जिंदगी में जो है क्या क्या अच्छाई आई है ना, क्या मैंने इस्लाह की। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह करे, हम सबको जो है अच्छे बातों पे चलने वाला बनाए, बुराई से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमारे से कबूल करे, है ना। आमीन आमीन आमीन। दुआ पढ़ लेती हूँ बहनों। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि